जब हम डॉक्टर कभी कभी बोलते हैं ना कि आपका रास्ता थोड़ा टाइट लग रहा है, बच्चा फंस सकता है ना, तो हम ऐसे नहीं बोलते कि, क्योंकि इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस होता है वो बहुत ही भयानक होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में एक दिन जब ओव्यूलेशन होता है, उस समय जब आपका डिस्चार्ज होता है, दैट इज़ नॉर्मल, ओव्यूलेशन वाला नॉर्मल। जिसको नहीं होता है, पैदा होने के साथ साथ अपना ही दूध पिलाया 6 महीने तक, तो आपको बच्चा नहीं होगा। सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, हाइमेनोप्लास्टी सर्जरी गिफ्ट देते हैं हस्बैंड को। इट विल बी लाइक फर्स्ट नाइट वाइफ इज ब्लीडिंग, तो दैट्स अ गिफ्ट, सिल्वर जुबली गिफ्ट। तो एक ही चाइल्ड है, बाकी चाइल्ड फंस के निकलता था, मर जाता था। वुमेन जब बच्चा देने के बाद क्या उन लोग का सेक्सुअल डिज़ायर पहले से ज़्यादा होता है ना? Black Hole presents Small Talk with Coco Season 2 and welcome to the another episode of Small Talk. And this is me, Coco, your host, and welcome to Small Talk. And before I start today's episode, I want to tell everyone जो भी मेरा podcast देखता है, I am really blessed to have you all. And when I started this podcast, I thought कि कुछ topics है that I would really like to include and I really wanted to include, and जो कुछ episode मैंने किया भी है, and today's episode is one of a kind, and I really wanted to cover this topic for a very long time, and I'm glad that today I'm doing it. And आज का episode is going to be around aesthetic gynecology, and to do that, I have a very special guest with me in the studio. And before I hit the episode, I want to mention that this episode is brought to you by Black Hole, and we are recording at Ragi Studio. And my hamper partner is Moody Monk, and I am wearing a very trendy outfit from my sustainable fashion provider, Trip Town. And my refreshment partner is Joss Kitchen. So let's meet our guest. Hello, I am Dr. Bengya Chirchi. I'm an associate consultant of RK Mission Hospital in the Department of Obstetrics and Gynecology. I also run an aesthetic clinic, Rivana Aesthetics. There I practice my aesthetic gynecology. So thank you for inviting me in your show, and I am expecting many interesting questions in the field of aesthetic gynecology. We are going to, clear many myths in this field. And before I start the conversation, I want to say thank you to you, ma'am, for your time. And because we've been trying this episode for so many days, लेकिन कुछ like you've been busy and हम लोग नहीं कर पाया, and finally we made it. Thank you so very much for that. And before we start and go to the topic, I want to ask you कि थोड़ा सा aesthetic ये जो gynecology है, ये जो term है, इसको easy शब्दों में आप can you just explain us for us? We all know what aesthetic is, है ना? तो aesthetic gynecology को हम cosmetic gynecology बोल के भी बोलते हैं. So but people have a misunderstanding कि हम सिर्फ जो external beauty of women's intimate area के ऊपर ही काम करते हैं. Aesthetic gynecology has now been termed as regenerative and functional gynecology as well. इसमें क्या होता है कि औरत को during their after their child birth जो बहुत सारे changes उनके body में आता है, सर से लेके पाँव तक changes आते हैं, तो it is obvious कि intimate areas पे भी काफ़ी changes आता है. तो ये एक ऐसा field है which is very new. इवन पूरे वर्ल्ड में ही ये बहुत ही न्यू है. सो इसमें इसीलिए बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर कर सकते हैं. इफ़ पॉसिबल वी विल ट्राई टू कवर एवरी टॉपिक. तो इसमें क्या होता है कि जो चेंजेस आते हैं विमेन के बॉडी में आफ्टर डिलीवरी एंड आफ्टर मेनोपॉज हो जाने के बाद भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं. उसमें जो लोगों के जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ एंड डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो हिंड्रेंसेस होता है उसको हम टैकल करते हैं. लाइक वजाइनल लैक्सिटी हो गया है, डिस्टॉर्शन ऑफ द शेप आफ्टर वजाइनल बर्थ हो जाता है, जो हमारे जो प्राइवेट एरिया के जो चेंजेस इन द कलर ऑफ द स्किन, स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं, एंड जो एब्डोमेन जो इतने लैक्स हो जाते हैं आफ्टर चाइल्ड बर्थ, वो सारी चीज़ें.
एंड डिलीवरी के बाद बहुत इट इज़ वेरी कॉमन कि स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस विच वी उसको अगर इजी वर्ड्स में पुटअप करें तो आप जब फोर्स लगाते हो आफ्टर चाइल्ड बर्थ यूरिन लीक हो जाता है. इस अब बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाता है फॉर अ लेडी आफ्टर चाइल्ड बर्थ और इवन आफ्टर यू नो सेक्सुअल कांटेक्ट. जो यंग गर्ल्स होते हैं उसमें बहुत सारे वजाइनल डिस्चार्जेस जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है. मेडिसिन खाते खाते या फिर मेडिसिन इंसर्ट करते करते कई बार क्या होता है कि दे बिकम रेजिस्टेंट टू मेडिसिन्स. तो उनके पास अभी क्या ऑप्शन है. ठीक है. एंड मेनोपॉज के बाद जिस तरीके से हमारा स्किन में रिंकल्स आ जाते हैं, इलास्टिसिटी गायब हो जाता है, कोलेजन इलास्टिन के लेवल ड्रॉप होता है. एक आप जैसे जवान में चोट लगने से जल्दी हील हो जाता था, अभी बुढ़ापे में व्हेन यू आर मेनोपॉजल बहुत एजेड में इफ़ ये कुछ भी वजह से इंजरी हो जाता है तो वो जल्दी हील नहीं होता है. और एक बार इन्फेक्शन हो गया वो जल्दी हील नहीं होता है. जो हमारे जो हॉस्पिटल्स में, क्योंकि जो औरत जो होता है ना, ये अपने प्राइवेट एरिया के बारे में डिस्कस करने के लिए वो लोग इतना शर्माते हैं एंड दे थिंक कि ये सबको होता होगा. तो सबको होता है, सब झेल रहे तो हम भी झेल लेंगे. हमारे पेरेंट्स, हमारे मम्मी ग्रैंड मदर ने झेला है. तो सिचुएशन जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जैसे कि आई ऑलवेज मतलब ये कहानी, ये वाला एक इंसिडेंट आई ऑलवेज मेंशन कि एक बार एक जवान लड़का अपने ग्रैंड मदर को लेकर आए थे एंड ही वाज जस्ट सेइंग कि इनको थोड़ा सा वजाइनल डिस्चार्ज होता है. ऑब्वियसली दैट यंग गाय could not understand what is happening. On examining it was seen कि इतना हालत ख़राब हो गया था कि ऑलमोस्ट मतलब रिवर्स सब हम इन्फेक्शन को ही कंट्रोल कर सकते हैं. अगर वही सेम औरत हमको बहुत साल पहले मिलता तो उनके हम जो फिज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम बहुत इम्प्रूव कर सकते थे. तो अभी उनका हालत ऐसा है कि वजाइना इतना स्टिनोज्ड हो जाता है, उसमें इतना प्रॉब्लम हो जाता है कि उसको बार बार खुजली, बार बार वाइट डिस्चार्जेस, बार बार यूरिन इन्फेक्शंस होते रहता है. तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतना ज़्यादा नहीं होता था. हम सपोज़ हम 60-70 ईयर्स में ही हमारा डेथ हो जाता था. तो मेनोपॉज अगर 40 ईयर्स में हो, 40 ईयर्स इज़ वेरी अर्ली, 52 ईयर्स में होता है एवरेज देखा जाए तो हमको बस अनदर 8-10 ईयर्स जीना है. तो वो हम तड़प के भी जी लेंगे. ठीक है, एकदम सह के तड़प के जी लेंगे. बट अभी हमको जीना है 100 ईयर्स तक भी, 90 ईयर्स तक भी. तो हम कैसे अपना जो हाफ ऑफ आवर लाइफ स्पैन को हम क्या इतना तड़प के रहेंगे क्या, है ना. तो वो सब चीज़ जो है फिज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने के लिए एस्थेटिक गायनेकोलॉजी अभी फील्ड में आ गया है, विच हैज़ गॉट इक्वल इम्पोर्टेंस विथ अदर स्पेशलिटी, सब स्पेशलिटी ऑफ गायनेकोलॉजी. एंड लोग जब कॉस्मेटिक गायनी बोलते हैं दे ओनली टॉक अबाउट वजाइनल टाइटनिंग, बट कॉस्मेटिक गायनी जो है वजाइनल टाइटनिंग सिर्फ नहीं है, इट इज़ मच मोर देन दैट. It really improves the quality. It maintains your womanhood. That is what I would like to say. Okay, so do you think कि अगर like ये जो awareness, जैसे कि आपने वो old lady का जो story बताया है, do you think are people like awareness and जो कि इसके बारे में ही बात होने से awareness बढ़ेगा, so we don't talk much about it. Do you think female को भी awareness का ज़रूरी है, also equally men को भी ज़रूरत है ये अवेयरनेस का? यस, यहाँ पे ये एक ऐसा टॉपिक है जो सच बताओ गायनेकोलॉजिस्ट को भी मतलब कभी कभी बात करने में शर्म आता है. सच बोले तो व्हेन आई वाज अ वेरी यंग गायनेक, अभी आई डिड माई गायनेकोलॉजी 2011-2014, तो अभी बहुत साल हो गया. नाउ आई कैन टॉक वट एवर यू वांट टू टॉक. मतलब इतना खुलासा हो गया, वेदर सामने वाला लड़का है लड़की है, ओपननेस आ गया है. एंड लेकिन शुरू में even I felt very uncomfortable. How will I talk about sexual life of someone
एंड माई सेल्फ शादी नहीं हुआ था, बच्चा नहीं था, तो मेरे को बस थियोरेटिकल नॉलेज था उस समय. अभी व्हेन आई एम माई सेल्फ, आई एम मैरिड, आई हैव 2 kids, तो आई अंडरस्टैंड कि जो हम सोचते थे कि ओपीडी में पेशेंट्स आते थे, आपको तो बस थोड़ा सा इन्फेक्शन हो रहा है, दवाई लिख के आई टू से. नाउ आई अंडरस्टैंड कि बेचारे की इतना हिम्मत जुटा के मेरे पास आया था होगा, जिसको हमने जस्ट ऐसे रफा दफा कर दिया. ठीक है, टू कम टू अ गायनिकोलॉजिस्ट विथ कंप्लेंट्स कि मेरा थोड़ा सा शेप में गड़बड़ है ना, आई एम नॉट एबल टू सेटिस्फाई माई हस्बैंड, आई फील आई एम लेस less attractive in the eyes of my husband. I feel कि I'm not a complete woman because things have gone this way. तो वो सब चीज़ जो, एंड ऑब्वियसली आफ्टर चाइल्ड बर्थ जो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच जो सेक्सुअल इंटीमेसी होता है वो बहुत कम हो जाता है. एंड इन अ ट्राइबल सोसाइटी वेयर पॉलीगैमी इज सो हाई, लड़की को हमेशा डर लगता है कि अभी आई एम नॉट प्रिटी, ही विल रन अवे, ऐसा ना. तो ये जो है कॉन्फिडेंस लेवल जो इतना डाउन हो जाता है आफ्टर अ चाइल्ड बर्थ कि अभी व्हाट टू से, दे डोंट फील, ऐसा बोलते कि आई डोंट फील द डिज़ायर टू स्टे विद माई हस्बैंड ऑल्सो. तो दीज थिंग, अभी जस्ट इमेजिन इफ अ वुमेन कम्स, इतना भीड़ ओपीडी में वुमेन कम्स, आई डोंट फील टू हैव अ सेक्सुअल, अ हेल्दी सेक्सुअल लाइफ विद माई हस्बैंड, मतलब मेरा सेक्सुअल लाइफ इज़ नॉट हेल्दी इन अ भीड़ वाला ओपीडी. तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट ऑन आवर पार्ट ऑल्सो कि हम उनको काउंसलिंग दें. ठीक है, तो बट एटलीस्ट आई कैन गाइड देम कि कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है. एंड दैट इज़ द मेन पर्पस, एस्थेटिक क्लिनिक खोलने का ये मेन पर्पस भी था कि obviously I wanted to venture into this. And the other thing is कि एक safe, एक openness वाला एक environment create करो जिसमें people can come and discuss about these things also. But the thing is कि लोगों को पता ही नहीं कि discuss भी होता है इसमें, है ना. And सच बोले तो इतना सारा women they come to me, they will first ट्राई टू टॉक दी नॉर्मल डिजीज़ वाला प्रॉब्लम. मैम मेरा मेंस में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मेरा फर्टिलिटी में ऐसा प्रॉब्लम है. तो वी विल टॉक अबाउट very official talk. 15 minutes we will talk. And when I will say shall I write some investigations to check whether you really have problem, because sometimes while discussing ऐसा लगता है कि इतना प्रॉब्लम नहीं है. It almost feels like beating around the bush. So would you like to talk about something else as well? Then they say कि मैम ये क्लिनिक में ऐसे भी होता है ना. तो अभी ये सब बात करने में भी लोगों को थोड़ा सा हेजिटेशन होता है. So it will be so much easier if women come कि मेरे को ऐसा प्रॉब्लम है, let's talk about this and what are the options available for me, so that I can straight away start the treatment. Or if you want to discuss about the cost factor, तो we can discuss about that also. ऐसे करके अगर openness आ जाएगा सोसाइटी में, तो हमको भी पता होना है कि किस चीज़ का ट्रीटमेंट देना है ना. What are the problems which has to be addressed in this field. तो अगर openness नहीं आएगा तो डिस्कशन होगा ही नहीं. Okay, so like we'll just ask कि जैसे you mentioned that you have a clinic, तो वहाँ पे क्या क्या treatment available है अभी? like as far as possible I have tried to include everything, almost everything, whatever जो भी possible होता है aesthetic gynecology में. Mainly क्या होता है कि aesthetic gynae बोलने से people come only with vaginal tightening कराना है. तो vaginal tightening के लिए ही main आते हैं. And इनिशियली आई वाजंट एक्सपेक्टिंग कि मेरा इतना सारे केसेस होगा यहाँ पे, क्योंकि इट्स बीन ऑलमोस्ट 10 years आई एम प्रैक्टिसिंग इन ईटानगर. तो इतना केसेस होता नहीं था. साल में ही फ्यू केसेस ओनली. ओवरऑल अगर पूरा हॉस्पिटल को भी इंक्लूड कर दे तो भी साल में कभी एक बार भी नहीं होता था, 2 बार भी नहीं होता था. तो अभी क्या है कि almost every week we do one surgical procedure. And जो non surgical procedures तो बहुत सारा.
तो नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स में क्या है कि लेजर्स रेडियो फ्रिक्वेंसीज होता है फॉर वजाइनल टाइटनिंग, बट देन विथ दिस इसको हम बोलते हैं एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस। तो जो एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस से इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप 5-6 बच्चा 4 किलो का बच्चा यू हैव डिलीवर्ड एंड द वजाइना इज़ वेरी लैक्स, देन वी शुड नॉट एक्सपेक्ट कि एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस से ये डायरेक्टली पूरा वर्जिन वाला स्टेट में आ जाए। ऑल राइट, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस से इतना ज़्यादा टाइटनिंग होगा नहीं, दैट विल बी अचीव्ड ओनली विथ सर्जरी। ओके, ठीक है, बट देन जैसे कि आपका सिजेरियन हुआ है या जस्ट डिड नॉट हैव एनी चाइल्ड बर्थ, बॉयफ्रेंड था एंड उसके बाद बच्चा हुआ है, बट you did your Kegels exercise very nicely, your vagina is ठीक ठाक, एंड देन बच्चा हुआ तो भी स्मॉल साइज बच्चा ही हुआ है, तो देयर एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस विल डू द वजाइनल टाइटनिंग। ओके, ठीक है, द प्रॉब्लम विथ सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल वजाइनल टाइटनिंग इज दैट कि वन हैज़ टू अंडरस्टैंड कि इलास्टिसिटी जो होता है, एक वजाइना ऑब्वियसली इलास्टिक ऑर्गन है, एवरीबडी नोज दैट। इतना बड़ा बच्चा अरुणाचल में तो 5 किलो का भी बच्चा हो जाता है। वी नेवर ट्राइड दिस इन दिल्ली, कभी ट्राई नहीं किया। 4 किलो मतलब 3.5 किलो मतलब वी नेवर गेव ट्रायल एक्चुअली। यहाँ पे 4 किलो 5 किलो बच्चा इतना कॉमन है, आराम से हो जाता बिकॉज ऑफ आवर डाइट, है। नॉट बिकॉज ऑफ आयरन कैल्शियम। देयर इज अ मिथ कि आयरन कैल्शियम खाने से बच्चा बड़ा हो जाता है। द राइस दैट वी ईट, राइस से बहुत मोटापा होता है। मम्मी अगर मोटी है तो बच्चा मोटा होगा, है ना। मम्मी अगर पतली है, आई एम वेरी लीन एंड थिन, माई बच्चा वेरी लीन है, छोटू मोटू, ठीक है। तो ऐसा होता है साइज। हम पीपल थिंक कि डॉक्टर्स जानबूझ के टैबलेट्स दे के बच्चा बड़ा करके तो है। बच्चा बड़ा करके या बच्चा फंसेगा, बच्चा फंस के तो सीजेरियन होने से हम कमाएंगे। पीपल थिंक लाइक दैट, सो दिस आई कैन नॉट चेंज देयर मेंटालिटी, बट फ्रॉम माई एंड आई शुड ऑलवेज बी आई शुड जितना पेशेंट्स को भी मिले तो आई शुड बी एबल टू एजुकेट देम। अगर टैबलेट से मोटा हो जाता तो आज खुद खा के मोटे हो जाता ना। तो द थिंग इज कि जो बहुत ज़्यादा वजाइनल लैक्स अगर हो जाता है, उसमें क्या होता है कि इलास्टिसिटी होगा नहीं, है ना। हम अगर उसको टाइट कर दे, तो बस टाइट ही होगा। ओके, उसमें हम इलास्टिसिटी तो नहीं ला सकते। ओके, तो जस्ट इमेजिन अगर कोई मेरे पास पोस्ट मेनोपॉजल, मतलब जिसका मेंस ही खत्म हो गया, वेरी एजेड, उसका मैंने टाइट कर दिया। अभी नाउ शी विल वांट टू हैव सेक्सुअल इंटीमेसी विथ हर हस्बैंड, शी विल हैव पेन, इलास्टिक नहीं होगा, ठीक है। इलास्टिक नहीं होने के वजह से कभी कभी फट भी जाता है। जैसे न्यूली अगर किसी का वर्जिनिटी ब्रेक होता है, दैट्स व्हाई दे सेड ना वैजिनल टाइटनिंग के बाद आप वर्जिन हो जाते हैं, फट जाता है ना। तो फट जाने से इन्फेक्शन होगा, पेन होगा, एंड तो उल्टा जो हम सोचते हैं कि वी विल इम्प्रूव दी सेक्सुअल इंटीमेसी बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ, वो उल्टा कभी कभी लेने का देना पड़ जाता है। तो वी ट्राई टू, एटलीस्ट आई ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट कि अगर साथ में करेंगे वजाइनल रेजुविनेशन विद दी एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस, एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस का ये खास बात है कि रेजुविनेशन करता है। इलास्टिसिटी को टीनेजर या एकदम यंग जैसा तो बनाएगा नहीं, बट देन थोड़ा तो इम्प्रूव करेगा, है ना, थोड़ा इम्प्रूव करेगा। तो एक जो वजाना भी बहुत पतला हो जाता है, जो थिकनेस जो होता है एज वी एज, बिकॉज ऑफ दी लो एक हार्मोन होता है इस्ट्रोजन, इस्ट्रोजन की कमी की वजह से वजाइना का थिकनेस भी कम हो जाता है। कोई कपड़ा पतला होने से, खींचने से जल्दी फटता है ना। लाइक वाइज अगर सेम कपड़ा को हम अच्छे से गुड क्वालिटी डिटर्जेंट या कुछ भी यूज़ करने से उसका इलास्टिसिटी मेंटेन रहेगा ना।
लाइक वाइज वजाइना को भी अगर एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस रेगुलरली अगर हम यूज़ करेंगे, रेजुविनेटेड रहेगा, तो उसके बाद अगर हम वजाइनोप्लास्टी करेंगे या वजाइनोप्लास्टी के बाद हम एनर्जी बेस्ड डिवाइस करेंगे तो आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा. ठीक है. Okay. समटाइम्स इट इज़ नॉट जस्ट कि आप लेज़र करो या रेडियो फ्रिक्वेंसी करो या फिर आप सर्जरी करो. द बेस्ट विल बी द कॉम्बिनेशन. ठीक है. And also like people have this idea or this talk कि cervical cancer improve होता है, जैसे कि अगर आप vaginal rejuvenation करते हो तो हाँ, तो उसमें ये होता है कि वजाइनल रेजुविनेशन में हम सर्विक्स को छूते ही नहीं. सर्विक्स इज़ अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फीमेल. जो यूट्रस का जो ओपनिंग पार्ट होता है वो वही है सर्विक्स, और वजाइना उसके नीचे है. तो इट इज़ जस्ट लाइक वी आर सिटिंग हियर, आपका दरवाज़ा वहाँ है, वी आर सर्विक्स एंड दैट इज़ वजाइना. द थिंग इज़ कि अगर वजाइना से मतलब दरवाजे से कोई डाकू गुंडा आएगा तब जाके वी विल बी अटैक्ड, राइट. तो दरवाज़ा को लॉक करेगा तो सर्विक्स विल बी सेफ ना. अगर हम लोग वजाइना को इतना हेल्दी कर दे कि वो इन्फेक्शन होने ही ना दे तो सर्विक्स में घाव नहीं होगा. सर्विक्स में घाव नहीं होने से अगर उसमें HPV वायरस घूम रहा है, HPV वायरस का एंट्री होना थोड़ा सा मुश्किल होगा. अगर सर्विक्स में घाव है और उसमें उसके पास ही कैंसर जो बनाता है HPV वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जिससे कैंसर होता है, वो अगल बगल में ही होगा, तो एंट्री पॉइंट इजी हो जाएगा ना. घाव के थ्रू तो इजी से एंट्री हो जाएगा. लेकिन घाव ही नहीं होगा तो एंट्री नहीं मिलेगा. अगर है भी तो डेल नॉट डिस्टर्ब, है ना. तो वैसे इट विल डेफिनेटली नॉट we cannot say कि it will not improve cervical cancer, but yes, it will create a good vaginal environment, a good intimate wellness, जिसकी वजह से आपको vaginal discharges थोड़ा सा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से सर्विक्स हेल्दी रहेगा. एंड सर्विक्स, हेल्दी सर्विक्स के पास इतना कैपेसिटी है कि HPV वायरस से अटैक नहीं होने के लिए. एंड वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि HPV वायरस, जस्ट mere presence of HPV वायरस will not cause what you call cervical cancer. सर्वाइकल कैंसर होने के लिए HPV वायरस का परसिस्टेंस फॉर 10 to 15 years होने से तभी कैंसर होगा. तो हमको अपना इम्यूनिटी को इतना इम्प्रूव करना है कि अगर हमारा इम्यूनिटी इतना इम्प्रूव्ड है तो वायरस को खुद ही वॉश ऑफ कर दे. ठीक है. तो इट इज़ जस्ट लाइक कि हमको कोरोना हुआ था तो हमने विटामिन C के लिए नींबू पानी पिया था, ऐसा टाइप ना. तो इम्यूनिटी बूस्ट करता है. ओके, सो अभी लाइक इफ वी टॉक अबाउट अरुणाचल, तो अरुणाचल में कैसा है अप्रोच, कैसा है सिंस यू स्टार्टेड योर क्लिनिक? ट्रूली स्पीकिंग आई वाज वेरी मच वरीड कि इफ़ आई वेंचर इनटू दिस फील्ड, क्योंकि अभी तक किसी ने वेंचर नहीं किया था इनिशियली. तो आई वाज थिंकिंग कि मेरा पास, एंड मोर ओवर दी मशीन्स आर सो कॉस्टली, इतना कॉस्टली है कि उसे मतलब क्या छोटा सा घर ही बन जाएगा ऐसा टाइप. इट इज़ दैट मच कॉस्टली मशीन विच आई बॉट. इतना ट्रूली स्पीकिंग ना, किसी का छोटा सा घर ही बन जाएगा, इतना मशीन कॉस्टली है. तो आई वॉज थिंकिंग कि क्या विल आई बी एबल टू जनरेट इतना रेवेन्यू कि इसका जो EMI हमको एवरी मंथ पे करना पड़ रहा है, तो विल आई बी एबल टू पे बैक द EMIs और नॉट. ठीक है. तो बट देन आई थॉट कि देखा जाएगा, जो होगा ना, जो होगा देखा जाएगा. बिकॉज अल्टीमेटली आई वुड लाइक टू से वन थिंग बिफोर स्टार्टिंग दिस. मेरे में why did I enter into this? My main area of interest was related to fertility issues, infertility. I did extra fellowship course of total 1 year in IVF training. तो औरत जो क्या होता है कि एक बार मेरे से पूछा
मैडम फर्स्ट टाइम बच्चा करना इज़ ईजी ना, सेकेंड टाइम बच्चा करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट नो. Then I said, statistically that is correct, but why are you asking? She said कि एक पहला बच्चा होने से पहले तो me and my husband were very good intimate. जैसे फर्स्ट बच्चा हुआ I gained so much of weight after vaginal delivery. मेरा नीचे पार्ट तो gone केस है. My husband, I feel I'm not being loved by my husband. जब प्यारी नहीं है, when there is no sexual intimacy, बच्चा कैसे होगा? आई थिंक ये अरुणाचल में ये केसेस बहुत है. लाइक हाँ. ये जो थिंकिंग वुमेन लोग ही हाँ. खुद करता है ये खुद करता है एक्चुअली. टू बी प्रिसाइज, इट इज़ नॉट जस्ट कि यू आर अगली, योर प्राइवेट एरिया इज अगली, योर वजाइना इज वेरी रिलैक्स. वो नहीं है. अगर आपका हस्बैंड विल लव यू, योर हस्बैंड विल लव यू नो मैटर व्हाट. आप अगर 100 kg के हो, 40 kg के हो, इफ़ यू आर डार्क स्किन, लाइट स्किन हो, whether you give him a child or not, वो तो प्यार रहना है तो वो तो रहेगा. द प्रॉब्लम इज कि वुमेन खुद को दूर कर देता है बिकॉज दे फील कि आई एम नॉट प्रिटी एनफ नाउ, जस्ट लुक एट मी, माई हस्बैंड लुक्स नाउ यंगर देन मी ना, ही डिजर्व समवन बेटर. ऐसा तो एस्थेटिक गायनेकोलॉजी विल नॉट क्लेम कि हमने आपको सुंदर बना दिया. नाउ द वजाइनल टाइटनिंग, नाउ योर लाइफ विल बी अ काया पलट, चेंज विल हैपन विथ यू. ऐसा नहीं होगा. इट इज़ जस्ट टू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस कि you did something. I think husbands also appreciate कि my wife thinks I am not loving, that's why she went up to this level. I think कि मैंने कुछ प्यार करने में कमी कर दिया. वैसे हस्बैंड क्या होता है कि एक बच्चे के बाद उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है. नाउ दे हैव टू अर्न मोर एंड दे हैव टू थिंक कि सबके पास घर है, गाड़ी है, आई शुड ऑल्सो हैव. मतलब वो बेचारा उसमें वो बिजी रहता है कि एक सोसाइटी में नाम कमाना है, उसमें बिजी होता है. उस बिजीनेस में वाइफ को टाइम नहीं दे पाता है. एंड वाइफ सोचते है कि हस्बैंड बिकॉज आई एम नॉट प्रिटी इसलिए ऐसा हो रहा है. अभी बहुत सारा नीचे डिबेट लगने वाला है आफ्टर दिस लाइन. No, I feel like that because even I'm married. No, I know my husband loves me. बट इतना टाइम कहाँ होता है ना किसी के पास. आई एम ऑल्सो बिजी. जैसे जैसे उम्र जाते जाता है, लाइवलीहुड में ज़्यादा फोकस रहता है. आई एम बिजी विद माई किड्स. माई प्रोफेशन भी ऐसा प्रोफेशन चुना है कि इतना बिजी है, कुछ ज़्यादा ही बिजी है. समटाइम्स आई फील पिटी ऑन माई किड्स एंड ऑब्वियसली ऑन माई हस्बैंड ऑल्सो कि समटाइम्स टाइम नहीं दे पाते. मेहमान कम ही आता है, कभी आता ही नहीं क्योंकि होता ही नहीं. आई एम नॉट एट होम तो मेहमान भी कैसे है ऐसा टाइप. आई रीच होम 7 PM में घर पहुंचा तो मतलब बहुत जल्दी पहुंच गया. ऐसा है मेरे साथ. फिर 8 9 ऐसे में पहुंचता है. तो आई हैव ए वेरी अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड. इसीलिए इनफैक्ट ही कम्स टू द क्लिनिक एंड मेरे साथ भी डिस्कस की. आई से कि मतलब दिन अच्छा गया है तो let's not get into my personal life. The thing is कि I was interested in reproductive medicine. So that girl told me and I thought कि she's not working ना, इसलिए दिमाग मतलब she was a housewife तो मे बी घर बैठ के थोड़ा सा ऐसे हो गया होगा. When later on देखा गया कि my own doctor colleagues जैसे कि look at me, I am like this like that, I don't want to have my second child में तो बहुत तकलीफ हो रहा है, हो ही नहीं रहा है. माई हस्बैंड का साथ तो बैठना ही पसंद नहीं हो गया क्योंकि आई एम नॉट प्रिटी एनफ ऐसा. तो आई थिंक इवन एजुकेटेड वुमेन हो या नॉन एजुकेटेड हो या वेदर बी अ वेरी प्रोफेशनली करियर ओरिएंटेड लेडी हो या क्या स्टे एट होम मोम हो, प्रॉब्लम इज एवरीवेयर सेम. वो उन्होंने पूछा, आई गेव हिम कि आप वजाइनल टाइटनिंग तो कर सकते हैं बट देन सिर्फ एक ही बच्चा हुआ है तो सर्जरी के बाद तो दोबारा से तो वजाइनल डिलीवरी होगा नहीं. तो दिस बिकॉज क्या होता है कि वी नो अबाउट दिस सब्जेक्ट, ऐसे प्रोसीजर. यू गो टू दिल्ली मुंबई एंड देयर आर सच प्रोसीजर्स. तो मैम आप हमको देखा है क्या, हिंदी भी ठीक से बात नहीं कर सकते, इंग्लिश तो दूर के बाद, वहाँ से क्या बात करना है. शर्म आ जाता है ना उल्टा, मतलब जाके शर्म से बोल ही नहीं पाए. आपके सामने में भी इतना हिम्मत जुटा के आपके पास आए. दिल्ली मुंबई में कहा इतना हाई फाई लोग आ जाएगा ना तो कहाँ से बात हो पाएगा. तो आई थॉट कि मैम प्लीज़ आप लेकर आओ.
आई वाज थिंकिंग नहीं, आई एम मोर इम्प्रेस, पैसा अगर होगा तो आईवीएफ क्लिनिक खोलना है, ये तो इसमें तो पता नहीं लॉस होगा जैसा टाइप वाला था. तो ऐसे करके बैक टू बैक ऑलमोस्ट एवरी अदर डे पेशेंट ऐसा मिलने शुरू हो गया. ओके. ठीक है, तो पता चला कि इतना प्रॉब्लम है, स्पेशली बिकॉज पॉलीगेमी इतना रैम्पेंट है हमारा अरुणाचल में. एंड एक बच्चा 2 बच्चा से तो कोई खुश होता नहीं है हमारे अरुणाचल में. मिनिमम 3 मतलब कि बहुत कम बच्चा है. 4-5 तो चाहिए ही ऐसा टाइप. तो उसमें तो हालत ख़राब हो जाता है. तो आई थॉट कि इट्स अ लेट्स ट्राई ऐसे करके. तो द मोमेंट आई ओपन द क्लिनिक, people started giving personal text messages कि मैडम ऐसे ऐसे भी होता है क्या, ऐसे ऐसे मैसेजेस कितना हम एक्सप्लेन कर पाएंगे ना. दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन एवरीथिंग थ्रू मैसेजेस. तो एज फार एज पॉसिबल वी ट्राई टू एक्सप्लेन. बट द प्रॉब्लम विद एस्थेटिक गायनी इज, जैसे फेशियल एस्थेटिक्स का क्या होता है कि आईलिड सर्जरी कर दिए, बिफोर ऐसा है, आफ्टर ऐसा है, नोज ऐसा है. हम कहाँ से वजाइनोप्लास्टी को अपलोड कहाँ कर देंगे ना. एंड पेशेंट का अगर सपोज बहुत सारे एस्थेटिक क्लिनिक का पेशेंट बोलते हैं ना कि आई हैड दिस स्किन प्रॉब्लम, अभी मेरा स्किन प्रॉब्लम ठीक हो गया. एस्थेटिक गायनी पेशेंट तो छुप के ही आते हैं. तो that it is difficult to advertise actually, but gradually over the years, अभी more than a year हो गया, तो बहुत उल्टा बहुत ज़्यादा बिजी हो गया है. तो I actually wanted to, truly speaking, I wanted to avoid this podcast or this thing. और ज़्यादा बिजी हो गया है. तो कई बार क्या हम लोग को कोऑर्डिनेट करने में नहीं, आई मीन क्लिनिक्स भी ज़्यादा बिजी हो गया. पेशेंट आके फिर जैसे ही कुछ चीज़ एडवर्टाइज होते थे, इनफ्लो टू द क्लिनिक बहुत ज़्यादा हो जाता है. फिर ज़्यादा पेशेंट हो जाने से वी कैन नॉट कैटर टू दे. हाँ, तो फिर मिसकम्युनिकेशन एक्सपांड अभी नहीं कौन करेगा ना. आई माई सेल्फ विल हैव टू डू. तो यस, लाइक अभी जैसे कि आपने बोला कि यू आर द वन हु इज डूइंग दिस, लाइक अभी ये एस्थेटिक गायनेकोलॉजी. सो कैन यू जस्ट टेल ऑल द लिसनर्स, व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं कि इसमें भी करियर हो सकता है? Yes, of course. See, इसमें definitely I will ask my gynecologist friends कि take up this नाहरलगन part को आप लोग देख लीजिए. Don't expect me to open another branch. I don't want to have a very busy life. Life is already very busy. बच्चा हो जाने के बाद तो और भी busy हो जाता है. And it is not कि बच्चा पे ही ज़्यादा फोकस हुआ है. आई माई सेल्फ want to be have a relaxed life. तो it's a very good career option. Go have some extra trainings. क्योंकि when we were just with just MD degree, हमको वजाइनल टाइटनिंग करना आता है. ठीक है, it's very easy. pelvic floor repair ये सब करना is very easy for a gynecologist. ठीक है, because हमको बाकी प्रोसीजर्स के साथ भी हम ये इसको ऐड कर सकते हैं. बट जो लेबिया प्लास्टीज है, हाइमेनोप्लास्टीज है, एंड जो PRPs, जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मास, जो ओ शॉट्स, जी शॉट्स, देयर आर मेनी अदर थिंग्स, वो सब में थोड़ा सा ट्रेनिंग की ज़रूरत है. तो कर लीजिए या मेरे से ट्रेनिंग ले लीजिए. आई थिंक आई शुड ओपन वन. आई थिंक वर्कशॉप या फिर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उल्टा खोलना चाहिए. आई थिंक वो गुड अच्छा ऑप्शन होगा. You've given me a introspect. Yeah, you've given me a very good idea. Instead of opening me working at different centers, it's better open your own centers. I'll just teach you. Okay, so just now you mentioned the shots and like G shot. Yeah, G shots, O shots. G shots and O shots, na? That is also called as orgasm shot. Yeah, actually, what O shots and G shots are patented words. I am not supposed to say these words. If I use, I'll be sued. These are just orgasmic shots. Orgasmic shots doesn't mean because while giving pamphlets, I mentioned orgasmic shots. So people will say, ये क्या बदमाश वाला इंजेक्शन है.
तो पीपल थिंक कि इंजेक्ट करते ही पेशेंट को ऑर्गेजम आ जाएगा. इट इज़ नॉट लाइक दैट. हाँ, Okay. सीरियसली ये क्या शॉट है इतना बदमाश वाला, पूरा अरुणाचल का बदमाश लड़की तुम्हारे पास आएगा ऐसे. माई कलीग यूज्ड टू से कि जितना भी ईटानगर का बदमाश एरिया, रेड लाइट एरिया का लड़की विल कम टू यू ना टू गेट दिस ऑर्गेजमिक शॉट. पीपल थिंक कि इंजेक्शन मारते ही ऑर्गेजम हो जाएगा. इट इज़ नॉट लाइक दैट. I will give you a brief, explanation about the sexual response cycle. There are 4 stages for orgasm to happen. Number 1, you'll have to have a desire. Second, you'll have to have arousal. Then orgasm. After that, resolution. ठीक है. तो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो एक सेक्सुअल इंटीमेसी में प्रॉब्लम क्या होता है, आई विल टेल यू. इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम. विमेन को कुछ लोग विमेन दे फ्यू नहीं बोलूँगी, almost many women, say about 90% women, they fake orgasm in front of their partner. कि हाँ orgasm फीलिंग्स आ गया है. एंड देन पीपल विल, क्योंकि हस्बैंड को एक वो होता है, व्हाट यू कॉल मेल ईगोइज्म. आई एम एबल टू सेटिस्फाई माई वाइफ, आई एम अ गुड हस्बैंड. तो वाइफ बिकॉज शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड, शी फेक्स. ठीक है, तो फेक कहीं ना कहीं तो पता चल जाता है. तो वाइफ हस्बैंड क्या होता है कि ये या मतलब कहीं और तुम बदमाशी कर रहा होगा, दैट्स व्हाई यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ मी, और डू यू वांट समवन एल्स. ऐसे इट इज़ प्रैक्टिकल, वेरी प्रैक्टिकल. तो क्या होता है कि विमेन, औरत को एक ऑर्गेज्म अचीव करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है. लेकिन आदमी को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. बिकॉज इट इज़ सेड, अभी men can disagree with me, but men, their main focus is on the actual action. फिजिकल इंटीमेसी काफ़ी है. वुमेन को क्या होता है कि इमोशनल अटैचमेंट चाहिए, दे हैव टू प्यार चाहिए. पति पहले प्यार से बात करना है, फिर एनवायरनमेंट क्रिएट होना है. शी शुड फील द लव. उसके बाद ही आफ्टर सेक्सुअल इंटीमेसी ऑर्गेज्म होगा. तो क्या होता है कि फ्रॉम आवर एंड हाउ कैन वी हेल्प. जो वजाइना हैज़ गॉट डिफरेंट पार्ट्स. उसमें एक ओ स्पॉट होता है, जी स्पॉट होता है. बेसिकली जो एंटीरियर, सॉरी मेडिकल टर्म निकल जाता पीछे. तो वजाइना के जो आगे वाला हिस्सा है, ब्लैडर के पीछे वाला जो वजाइना का जो पार्ट है, दैट इज़ वेरी सेंसिटिव. उसमें जो बहुत सारे नर्व्स होते हैं. ठीक है, तो जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा PRP, जिसको हम बाल पे लगाते हैं, वेरी कॉमन ना, वैम्पायर फेशियल करते हैं, वैम्पायर हेयर लिफ्ट, जिसमें क्योंकि देखा गया है इंजेक्शन के बाद स्किन इम्प्रूव होना एंड हेयर इम्प्रूव होना देखा गया है. तो उसमें क्या होता है कि ग्रोथ फैक्टर्स निकलता है. वो ग्रोथ फैक्टर्स जो है बाल में लगाओ तो हेयर फॉलिकल्स को ग्रो कर देता है, स्किन में लगाओ तो रिंकल विंकल ये सब हटा. तो वही चीज़ हम वो जो वजाइना के जो आगे वाले हिस्से में हम इंजेक्ट करने से, वहाँ में जो ऑलरेडी नर्व्स सप्लाई है उसको हम लोग बढ़ा देते हैं. So with little bit of stimulation also, it should do the work. But ऐसा नहीं है कि we do the injection फिर husband wife relationship. You'll have to have the desire, है ना. desire तो होना पड़ेगा. अब desire ही नहीं है, चलो let's have sex बोलने से नहीं होगा ना. We should feel the love. तो wife को जो love चाहिए वो तो चाहिए. वो तो चाहिए. That we cannot, we as a doctor we cannot bring that. और अगर जो vaginal dryness भी जो issue है वो भी same है. If women will not
be mentally emotionally involved in the relation, dryness तो होगा, क्योंकि जो सिक्रेशन जो नेचुरली जो निकालना है सिक्रेशन, वहाँ पे जो छोटे छोटे ग्लैंड्स है वही निकलता है, वो उसको स्टिमुलेशन मिलेगा नहीं थ्रू ब्रेन का जो स्टिमुलस से कुछ होगा नहीं. तो वी आर देयर कि हमको जैसे कि आई विल जस्ट place a cake in front of you until and unless you put forward your hand and eat it, आपको टेस्ट मालूम नहीं चलेगा ना. तो विल जस्ट पुटिंग द केक इन फ्रंट ऑफ यू, बाकी काम तो आपको खुद करना पड़ेगा. तो लाइक वाइज हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशनशिप जो है, नो एक्सटर्नल पीपल कैन कमेंट ऑन दैट. वो आपस में ही खुद को हैंडल करना है. विल जस्ट हेल्प विद द early arousal part. Okay, so I guess agar if everyone watches this video, I think you explain it very well. Yes. And also like हम लोग Hopefully. के यहाँ पे emotional वो एक communication gap तो है, like हाँ. वो तो है, वो तो और जैसे कि हस्बैंड्स नहीं, अभी शायद चेंज हो गया हो, अभी शायद चेंज हो गया है ना. पुराने ज़माने में क्या होता था कि हस्बैंड थोड़ा आदर्शवादी टाइप एंड वाइफ सब कुछ सुनना, ऐसा वाला टाइप का. आजकल क्या होता है कि मैन वीमेन दे आर हस्बैंड वाइफ दे आर मोर लाइक फ्रेंड्स. पहले थोड़ा चेंज था शायद, अभी चेंज हो गया है. आगे फ्यूचर में और चेंजेस होगा मे बी. अभी हम ओ शॉर्ट जी शॉर्ट का कुछ मोर एडवांस्ड वर्जन शायद हमें मिले. तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग. Also, I want to ask you one question कि women जब बच्चा देने के बाद क्या उन लोग का सेक्सुअल डिज़ायर पहले से ज़्यादा होता है ना? कम होता है. कम होता है. कम इसीलिए होता है कि इमीडिएटली आफ्टर चाइल्ड बर्थ जो हम लोग बेबी को जो दूध पिलाता है, स्पेशली लैक्टेटिंग मदर्स को, हम क्या करते हैं कि जब दूध हम इट्स जस्ट लाइक कि हम जब बच्चे को दूध पिलाते हैं ना, बॉडी जो एक सिग्नल भेजता है कि छोटा बच्चा है, अभी और बच्चा नहीं चाहिए, और बच्चा होने से प्रॉब्लम हो जाएगा. तो सेक्सुअल डिज़ायर कम होता है, इस्ट्रोजन लेवल कम होता है. इस्ट्रोजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी सेक्सुअल लाइफ. तो इस्ट्रोजन हार्मोन की कमी की वजह से वजाना ड्राई भी बहुत होता है. ठीक है, वजाना ड्राइनेस की वजह से पेन भी होता है ऑब्वियसली. जो नॉर्मल डिलीवरीज जो होता है, नॉर्मल डिलीवरीज के बाद जो इंजरीज होता है उसमें तो जब तक पूरा घाव हील नहीं होगा तब तक तो पेन होगा. पेनफुल इंटरकोर्स तो हु विल वांट, नोबडी विल वांट. तो लाइकवाइज चेंज हो जाता है, प्रायोरिटीज चेंज हो जाता है, क्योंकि रात भर बच्चे को 2-2 घंटा में दूध पिलाना है, तो कहाँ से सेक्सुअल इंटीमेसी का टाइम आता है. Okay, I think this is the period जब ज़्यादा marriages या वो हो जाता है. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इमीडिएट आफ्टर प्रेगनेंसी चाइल्ड बर्थ, इसमें हस्बैंड दे हैव टू रिमेन लॉयल. लॉयल्टी चेक तभी होता है. Okay, so I think we have covered a lot of a topic. तो अगर आपको और कुछ बोलना है we'll क्योंकि ये next segment we'll take questions क्योंकि आई विल से कि हाँ, आई जस्ट वांट टू से कि औरत को आदत है इंजरीज या कुछ भी तकलीफ को झेलने का. पहले क्या हुआ था कि एक डॉक्टर, क्योंकि हमको क्या होता है कि इंटर डिपार्टमेंट्स कॉल्स भी मिलता है. कोई पेशेंट सर्जरी डिपार्टमेंट में एडमिट हुआ है तो वो डॉक्टर को लगता है कि नहीं, गायनी का कुछ एक ओपिनियन चाहिए, तो हमको कॉल भेजते हैं. देन वी गो इन एग्जामिन द पेशेंट. पेशेंट का कंप्लेन था कि टॉयलेट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है. तो जब व्हेन ही एग्जामिन दी ऑब्वियसली थोड़ा लेटरिन एनल वाला एरिया, रेक्टम पर रेक्टल एग्जामिनेशन करने का कोशिश किया था. देन ही सॉ कि देयर इज ओनली वन होल, वजाइना एंड एनस रेक्टम, सिर्फ वन होल. शी वाज इन हर 80s. Okay. आप देखो बच्चा कब हुआ था. बच्चा का भी बच्चा हो गया जल्दी शादी करके. तो आई आस्क कि डिलीवरी के टाइम क्या हुआ था ना. तो ही से कि बच्चा तो हमेशा फंसते रहता था ना. एक
शी हैड ओनली वन चाइल्ड, एक ही बच्चा है, उस बच्चे का बच्चा भी हो गया, तो एक ही चाइल्ड है, बाकी चाइल्ड फंस के निकलता था, मर जाता था। तो क्या है कि आई टोल्ड कि ये पहले हॉस्पिटल क्यों नहीं आया था, हॉस्पिटल क्यों नहीं आया, हॉस्पिटल नहीं आया क्योंकि पता ही नहीं, ये तो सबको होता है। तो अगर आज के ज़माने में ये पेशेंट हमको मिलता तो हम जो 2 से 1 होल बन गया, हम वापस इसको सुंदर से 2 होल्स बना देते। तो उनको लेटरिन का प्रॉब्लम भी नहीं होता, उसको वजाइना जो मेंस होते समय रेक्टम से आता है, टॉयलेट आने से वजाइना से आता है, वो सब प्रॉब्लम को नहीं झेलना पड़ता उसका। और बाकी बच्चा को भी हम थ्रू सीज़ेरियन सेक्शंस हम बचा सकते थे, है ना। इतना बार बच्चा किया, सब मर गया फंस के निकल के, क्योंकि बच्चे को जगह चाहिए ना, निकलना तो है ही, तो फाड़ फूड़ के निकल गया। तो औरत को पीपल थिंक कि वजाइनल डिलीवरी इज़ द अल्टीमेट, मतलब जिसने वजाइनल डिलीवरी कर लिया, मतलब एवरीबडी विल प्रेज। जिसने सिजेरियन कर लिया वेरी अनलकी, और सिजेरियन करके जिसका लड़की बच्चा निकल गया वो तो आई एम द मोस्ट अनलकी पर्सन इन द वर्ल्ड, ऐसा सोच के घूमता है। सो ये नहीं है, यू हैव योर ओन आइडेंटिटी, है ना। तो यू हैव टू प्रिवेंट योर इंटीमेट एरियाज ऑल्सो। तो एस्थेटिक गायनिकोलॉजी में ये मतलब नॉर्मल गायनिकोलॉजी में भी आता है, बट अगर सब स्पेशलिटी में देगा तो एस्थेटिक गायनिकोलॉजी में ये सब चीज़ भी वी कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पीपल्स लाइफ। एंड लास्ट एक है कि वही जो यूरिन छूट जाता है आफ्टर डिलीवरी, कीगल्स एक्सरसाइज से ठीक हो जाता है। कीगल एक्सरसाइज, हाँ, कीगल्स एक्सरसाइज से ठीक हो जाता है। एंड कीगल्स एक्सरसाइज के लिए आजकल मशीन्स आर ऑल्सो अवेलेबल, ठीक है। आई डोंट हैव दैट मशीन, अब फिर वो बहुत कॉस्टली मशीन है। ओके, इन फ्यूचर मे बी, ओके लेट्स सी, मे बी होने से अच्छा। आई थिंक ओल्ड एज वुमेन लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, यूरिन नहीं ओल्ड एज बोल के सिर्फ नहीं, आफ्टर सॉरी आफ्टर फर्स्ट चाइल्ड होने से भी किसी को प्रॉब्लम हो ही जाता है। सिर्फ चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड नहीं है, एजिंग, हार्मोनल चेंजेस, ये सब भी, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। Okay, now we'll take questions. Before shooting this episode, I have ये small talk के IG में डाला था that I am calling a gynaec, तो people really participated and उन्होंने कुछ questions भेजा है, तो we'll go there and we'll cover some questions ना। Okay. तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट एक है, प्लीज़ आस्क अबाउट सर्विक कैंसर वैक्सीनेशन फॉर अ गर्ल चाइल्ड, इफ देयर इज एनी साइड इफेक्ट, पीपल हैव द मीथ दैट इट प्रिवेंट्स कंसीविंग प्रॉब्लम्स। No, this myth is absolutely wrong. See, HPV virus is, sexually transmitted virus. When a virus is transmitted sexually, there is a high chance कि बाकी बैक्टीरियाज, बाकी इन्फेक्शंस भी ट्रांसमिट हुआ होगा। इन अ इन्फेक्टेड यूट्रस, वजाइना, ट्यूब्स और पेट के अंदर पेल्विस, देयर इज़ हाई चांस कि आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज़ नॉट एट इट्स बेस्ट फॉर्म। ओके, इन्फेक्शन है तभी HPV वायरस है। HPV वायरस से कुछ फर्टिलिटी इश्यूज या उसको वैक्सीन ट्रीट करने से, वैक्सीन देने से कुछ होता है, ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट अगर सोचा जाए तो अगर HPV वायरस के अगेंस्ट प्रिवेंट कर दिया एंड इफ़ यू मेंटेन योर इंटीमेट वेलनेस, आपको फर्टिलिटी इश्यूज उल्टा होना ही नहीं चाहिए। you'll have to get your egg qualities checked. You'll have to get your tubal patency checked. कई बार क्या होता है कि ट्यूब्स खुला होते हुए भी ट्यूब्स हेल्दी नहीं होता है, बिकॉज उसमें इन्फेक्शन हो गया है। HPV वायरस से इन्फेक्शन हो गया तो कुछ और वायरस से भी इन्फेक्शन हुआ होगा। जस्ट बिकॉज HPV वायरस से कैंसर होता है, आर फोकस HPV वायरस पे ज़्यादा होता है, दूसरा भी कुछ इन्फेक्शंस होने हुआ होगा जिसके वजह से आपके जो माइन्यूट लेवल पे, जैसे कि आप लोग तो वीडियो देखते ही हो ना, जैसे कि ट्यूब से जब अंडा स्पर्म जाता है तो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होता है। अगर बहुत लंबा समय तक इन्फेक्शन होने से वो जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है, जिसको जो थेल के ना सिलियरी मूवमेंट से अंडा को जगह से पहुंचाता है, स्पर्म को भी
जाने रास्ता बताता है, वो सब चीज़ डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से फर्टिलिटी इश्यूज आते हैं. ओके, सो विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये जो एक है PCOS वुमेन ट्राइंग टू कंसीव के ऊपर कुछ पूछिए. सो आई वांट आस्क, आप बताइए कुछ. PCOS is a very huge large topic. टॉपिक. इसमें एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, इसमें न्यूट्रिशनिस्ट, इसमें गायनेकोलॉजिस्ट, सबका रोल होता है. तो इफ़ यू आर अ फुल ब्लोन PCO पेशेंट, क्या होता है कि देयर इज मतलब सिर्फ 10% लोगों पे ही फर्टिलिटी इश्यूज होता है. बाकी तो 90%, 80 to 90% दे कंसीव्स इजीली. PCOD होते हुए अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल गड़बड़ है, मेंस्ट्रुअल साइकिल गड़बड़ होने से क्या प्रॉब्लम होता है कि आपको मालूम ही नहीं है आपका साइकिल कब ओव्यूलेशन होगा, ओव्यूलेशन का टाइम ही मालूम नहीं है. तो ओव्यूलेशन जब होता है तभी हस्बैंड के साथ बैठने से तभी बच्चा होता है. तब आपको पता ही नहीं कि ओव्यूलेशन कब हो रहा है, एंड डॉक्टर के पास भी आइडिया नहीं रहता है कि ओव्यूलेशन कब हो रहा है, या फिर कभी कभी होता है कि ओव्यूलेशन ही नहीं होता है इन अ केस ऑफ PCO. तो वो अच्छे से उसका ओव्यूलेशन का जो एक चेक करना पड़ता है, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग एंड उसका फर्टिलिटी चेकअप का, बाकी फर्टिलिटी चेकअप जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं बता सकते हैं. तो एंड ऑब्वियसली PCOD आज के ज़माने में हैज़ बिकम वेरी कॉमन, बिकॉज आप एक सोच लीजिए, हाँ, PCOD मीन्स जिसको ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम होता है, एन ओव्यूलेटरी वुमेन जिसमें मतलब ओव्यूलेशन नहीं होता है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ PCOD, ऐसे कोई भी नॉन ओव्यूलेटिंग वुमेन, सपोज माला रिमालाइन खा लिया, उसको ओव्यूलेशन अभी नहीं होगा ना, उसको हम अल्ट्रासाउंड करेंगे, या छोटा बच्चा जिसका ओव्यूलेशन स्टार्ट ही नहीं है उसको हम अल्ट्रासाउंड करेंगे, अल्ट्रासाउंड में थोड़ा पॉलीसिस्टिक ओवरी जैसा ही हमको दिखाई देगा. ठीक, कहने का मतलब ये है कि भगवान सबको जब पैदा होने देता है लड़की को, तो ओवरी जो थोड़ा PCOD टाइप का ही होता है. मतलब छोटे छोटे फॉलिकल्स होता है, ओव्यूलेशन नहीं होता है. अब हमको इससे बाहर आना है कैसे? आजकल के छोटा बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ कराता नहीं है. व्हेन वी वर किड्स, हम लोग ना कॉलोनी में कितना खेलता था, दौड़ भाग करता था कॉलोनी में ही. अभी गाड़ी ज़्यादा है इसलिए में भी, एंड जंक फूड ड्यूरिंग आवर टाइम्स हम भी जंक फूड खाते थे, बट नॉट लाइक टुडेज किड्स. तो लाइफस्टाइल ही गड़बड़ है, आप फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन नहीं कर रहे हो, आपका डाइट ही ठीक नहीं है, अभी स्ट्रेसफुल लाइफ है, यू हैव टू एक्सेल इन वॉट एवर यू आर डूइंग, बी इट एकेडमिक, बी इट स्पोर्ट्स, बी इट कल्चरल. अभी कंपटीशन इतना हाई हो गया है, स्ट्रेस लेवल इतना हाई हो गया है. तो जो PCOD पिक्चर से बाहर आने का जो एक कोशिश होता है फ्रॉम द बॉडी के साइड से, वो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से PCOD फंस के बैठ जाता है. ऐसा मतलब अगर इफ़ एट ऑल जो एक्सटर्नल फीचर्स की वजह से PCOD होने से वी कैन प्रिवेंट, बट सपोज PCOD यूजुअली उसमें इंसुलिन इनसेंसिटिविटी ज़्यादा होता है ना, इट इज़ बिकॉज ऑफ द इंसुलिन इनसेंसिटिविटी. तो औरत की जो मम्मी अगर या फैमिली में डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनके बच्चे को ज़्यादा होने का चांस रहता है. ठीक है, एंड अगर आप खुद PCOD मतलब कंट्रोल नहीं किया, बट लकीली आप प्रेग्नेंट हो गए, पेट के अंदर लड़की है, तो एक PCOD एनवायरनमेंट में उस बच्चे को भी एनवायरमेंटल फैक्टर के एनवायरमेंटल एक्सपोजर की वजह से PCOD हो जाता है. तो PCOD से बाहर आना है तो आपको लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, वेट कम करना पड़ेगा. ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग. अभी लाइक ये क्वेश्चन है, आफ्टर डिलीवरी पीरियड्स अगर 1 ईयर तक भी ना हो तो क्या है प्रॉब्लम? अच्छा, और डॉक्टर को कब कंसल्ट करना है? अगर सच बोले तो पीरियड जो हम देयर इज अ टर्म को लैक्टेशनल अमेनोरिया. तो लैक्टेशनल अमेनोरिया इज़ ये है कि आवर बॉडी ट्राइज टू गिव अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन टू वुमेन हु एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड देयर चाइल्ड. अगर आप अपने बच्चे को एक्सक्लूसिव मतलब एक्सक्लूसिव पैदा होने के साथ साथ अपना ही दूध पिलाया 6 महीने तक, तो आपको बच्चा नहीं होगा. ठीक है, होगा ही नहीं. दैट इज़ लाइक
100% श्योर Okay. लैक्टेशनल अमेनोरिया। हम्म, लेकिन 6 महीने के बाद इवन विदाउट मेंसेस हम्म, आपको बच्चा हो सकता है। ओके। बट अगर सपोज शुरुआत के 6 महीने में यू फील कि आपने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड किया, बट इन योर एब्सेंस थोड़ा बहुत टॉप फीड कर दिया बच्चे को, तो बच्चे को डिमांड नहीं महसूस होगा ना, तो मम्मी से दूध नहीं डिमांड करेगा, तो एक दो स्किप हो जाएगा, तो ज़्यादा लंबा समय के लिए ब्रेस्ट फीड नहीं किया है, तो एक्सक्लूसिव वाला ब्रेक हो जाएगा, जिसके वजह से 6 महीना से पहले भी बहुत लोग विदाउट मेंसेस कंसीव करता है। तो 1 ईयर में मेंस नहीं हुआ है तो नो प्रॉब्लम, इट इज़ बिकॉज आपने बच्चे को अच्छे से दूध पिलाया। दूध पिलाने से एक हार्मोन होता है सीरम प्रोलैक्टिन लेवल, वो हाई हो जाता है। वो सीरम प्रोलैक्टिन लेवल जो है मेंसेस को रोक देता है, मतलब कम करा देता है या तो रोक देता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द हाई सीरम प्रोलैक्टिन लेवल, जिसके वजह से मेंसेस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइक आफ्टर अंतरा इंजेक्शन पीरियड टोटली नहीं हो रहा है, इसका भी like, कुछ होने से व्हाई इट हैपेंस? चाहे आप अंतरा यूज़ करो, चाहे आप डेपो-प्रोवेरा यूज़ करो, चाहे आप मिरेना यूज़ करो, देयर आर सर्टेन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, सर्टेन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जिससे आपको मेंसेस नहीं होता है। ठीक है, वो वैसे ही उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही ऐसा है, वो मेंस नहीं कराएगा, बेसिकली आपको ओव्यूलेशन नहीं कराएगा। ओके, ओव्यूलेशन नहीं कराएगा, ओवुलेशन नहीं करेगा तो एग नहीं फटेगा तो मेंस नहीं होगा। हाँ, मेंस का नहीं होगा, है ना। तो माला डी माला एन भी अगर कंटिन्यूअस खाओगे तो मेंस नहीं होगा। जब आप छोड़ते हो तब मेंस होता है, तब हल्का सा ही मेंस होता है। तो इन अ वे कि जहाँ ओव्यूलेशन को ही हमने रोक दिया, मेंस होगा नहीं। ओके, ठीक है, ये सब चीज़ बिफोर यू टेक दिस, बिफोर यू डिसाइड कि हमको ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करना है, प्लीज़ टॉक टू योर डॉक्टर कि इससे क्या क्या चीज़ के लिए आई शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। फॉर एग्जाम्पल डेपो-प्रोवेरा, हम लोग बोलते हैं कि हमको इंजेक्शन चाहिए, कॉपर्टी डालने से वो होता है, इन्फेक्शन होता है या मिसप्लेस हो जाता है, दर्द होता है, पति को भी कभी कभी दर्द होता है, एंड अच्छा नहीं होता, पेट भी दर्द होता है, तो इंजेक्शन मार दो ऐसा। तो आई टेल कि इंजेक्शन लगाने से मेंस रुक जाएगा, एंड वापस कब आएगा, मतलब वी कैन नॉट, मतलब गारंटी कि इतने इतने महीने में आ जाएगा, कभी कभी 1 साल एक्स्ट्रा भी लग जाता है। तो डिस्पाइट नोइंग अगर आप लगाते हो तो दैट इज़ ऑन योर शोल्डर, हाँ, कि आप उसको लेना है नहीं लेना है। ओके, सो ये तो एक केस टाइप का ये लंबा वाला ना कुछ भेजा है कि आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी ना सेकेंड बेबी, आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी सेकेंड बेबी मेरा हॉस्पिटल में डिलीवर हुआ था, उसमें अच्छा से स्टिच होने के कारण से मेरा ओवर ब्लीडिंग हो रहा था। आफ्टर 3 days ऑफ डिलीवरी ओवर ब्लीडिंग होने का कारण से हमको दोबारा नीवा हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और वहाँ रीस्टिच तो में कर दिया, ओटी में कर दिया। आफ्टर रीस्टिच अभी तक मेरा वेजाइना नॉर्मल नहीं लग रहा है। डॉक्टर बोला था कि ओवर स्किन फट के रेक्टम तक फट गया था। मेरा बेबी ये सितंबर 5 को 6 month हो जाएगा। वेजाइना नॉर्मल नहीं लगने का कारण से भी अभी हस्बैंड का साथ फिज़िकल रिलेशन नहीं बना पा रहा है। इवन पैडिंग को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ना ही पोटी को, और वेजिना भी थोड़ा इचिंग होता है। डॉक्टर बोला कि एक्सरसाइज करो ठीक हो जाएगा। क्या मेरा प्रॉब्लम लाइफ टाइम के लिए है? प्लीज़ डॉक्टर से आप कंसल्ट कर दीजिए। हाँ, तो तो हाँ, एग्जैक्टली, पीपल व्हाट वी से कि द अल्टीमेट गोल ऑफ हैविंग अ चाइल्ड शुड नॉट बी वजाइनल डिलीवरी। जब हम डॉक्टर कभी कभी बोलते हैं ना कि आपका रास्ता थोड़ा टाइट लग रहा है, बच्चा फंस सकता है ना, तो हम ऐसे नहीं बोलते कि, क्योंकि इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस होता है वो बहुत ही भयानक होता है।
अभी बताया था ना, रेक्टम एंड वजाइना सिंगल होल हो गया था, पूरा फट गया था, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट पेरिनियल टीयर. तो वी वांट टू अवॉइड दैट, क्योंकि वो एक परमानेंट प्रॉब्लम हो जाता है. हाँ, थोड़ा सा सिलाई करके आपको मतलब थोड़ा तो ठीक कर सकते हैं, बट यू विल ऑलवेज हैव दैट डिस्कम्फर्ट. एक एनल स्फिंक्टर ही ख़राब कर दिया है ना, बहुत कुछ चीज़ कंट्रोल ही नहीं होता है. तो कभी कभी क्या होता है कि फटने से रेक्टम साइड में ही फटता है. हाँ, लेकिन किसी किसी को क्या होता है कि वजाना एंड ब्लैडर के बीच में भी छेद हो जाता है बहुत देर तक, अगर बच्चा फंस के बैठता है तो यही प्रॉब्लम है कि वजाना के, ऑल्दो वजाना इज़ अ वेरी इलास्टिक ऑर्गन, वजाना के आगे वेरी आगे, मतलब इतना अगल बगल है. वजाना का आगे इस यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा. वजाना का पीछे इस रेक्टम, एनस. अगर बच्चे को जगह नहीं मिला एंड फिर भी उसको नीचे से ही निकलना ही पड़ रहा है, तो वो तो जगह बना के ही निकलेगा ना, फटा के ही निकलेगा. कहाँ से निकलेगा वरना. तो व्हेन व्हाट आई एम सेइंग कि व्हेन डॉक्टर सजेस्ट यू कि सिजेरियन करना है, डोंट ऑलवेज थिंक कि डॉक्टर्स आर बीइंग मनी माइंडेड बिकॉज उसी के वजह से ही कर रहा है. हाँ, मैनी अ टाइम्स ऐसा भी होता है. आई एम नॉट डिनाइंग कि बच्चा फंसेगा जैसा लगता है, तो पेशेंट बोलते नहीं फिर भी हमको नॉर्मली करना है, एंड सच में हो भी जाता है, कुछ होता नहीं है. तो दे थिंक कि ऐसे ही बोल दिया है ना. बट उसमें अगर नहीं फटा के निकला तो भी क्या हुआ, यूट्रस नीचे खिसक गया. हाँ, यूट्रस नीचे खिसक गया, इलास्टिसिटी गॉन केस हो गया है. यूट्राइन प्रोलैप्स होने का चांस होता है. यूट्राइन जब प्रोलैप्स होता है, यूट्रस देखो इट इज़ एन ऑर्गन जो पेट के अंदर में लटक के वजाइना के थ्रू कनेक्ट हो रहा है. यूट्रस अगर नीचे खिसकेगा, यूट्रस जहाँ पे अटैच्ड है ना, वो खींचेगा, दर्द होगा, बैक पेन होना, पेट में पेन होना. This becomes a very common complaints of women after vaginal deliveries of big babies. ठीक है, एंड जिसमें ज़्यादा जोर लगाना पड़ा, बहुत कुछ होता है. It becomes horrible. So, जैसे कि इसने पूछा कि क्या ये प्रॉब्लम उनके लिए लाइफ टाइम रहने वाला है. लाइफ टाइम तो नहीं रहेगा. लाइफ टाइम नहीं रहेगा इन अ सेंस कि देखो कंप्लीट पेरिनियल टीयर को रिकन्स्ट्रक्ट कर दिया है, तो जो थोड़ा बहुत जो दाग जो है, इफ़ आई फॉर एग्जांपल इफ़ आई कट योर बोन हियर, उसको वापस जुड़ जाता है. बट एक कुछ डिफ़िकल्टी रहता है ना, वो लिटिल बिट ऑफ डिफ़िकल्टी विल ऑलवेज रिमेन. बट थोड़े बहुत जो कीगल्स एक्सरसाइज वगैरह से आपको जो एक सपोर्ट मिलता है, मसल स्ट्रेंथ मिलता है, उससे आपको प्रॉब्लम थोड़ा सा कम होगा. ओके, नेक्स्ट टाइम सिजेरियन करवा लेना. एग्जैक्टली. नेक्स्ट टाइम फटेगा तो सिलाने से ना मतलब, क्योंकि वंस कट उसका जो ब्लड सप्लाई गड़बड़ हो जाता है, तो बार बार फटेगा तो बार बार गड़बड़ होगा. कहीं ऐसा ना हो कि बियॉन्ड मतलब रिपेयर करने लायक ही ना रह जाए, ऐसा. ओके, सो ये एक है नॉर्मल डिलीवरी टाइम पे बोन्स पूरा साउंड के साथ टूट के बेबी निकल आता है, और कितना दिन में बोन प्रॉपरली, लाइक नॉर्मल डिलीवरी टाइम पे बोन्स पूरा साउंड के साथ टूट किसका के, बोन? ये एक मैसेज है. पेशेंट का हाँ, बोन ना बच्चा का बोन? आई थिंक वो अपना वो का बारे बोल रहे हैं, वेजाइनल बोन्स ऐसा कुछ होता होगा. इसको लग रहा है बोन, आई थिंक वो मसल साउंड जो फट जाते हैं, आई थिंक वो साउंड को बोल रहा है. आई डोंट नो, मतलब आई डिड नॉट गेट दिस. आई थिंक शी इज टॉकिंग अबाउट लाइक हर मसल जो फट जाते हैं ना, जब बेबी निकलते तो साउंड आते हैं, ऐसा बोलते हैं. तो ये लाइक जब फट जाते हैं, क्रैक 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 क्रैकिंग साउंड. ऐसा तो कुछ होता नहीं. आई थिंक ये उसको बोल रहे हैं, बोन्स तो नहीं होगा. आई डोंट नो, मेरे को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया. ऐसा कुछ बोन्स फटने वाला चीज़ है नहीं. हाँ, डेफिनेटली पेल्विस जो होता है, हाँ. जो बोन्स होता है,
बहुत दुख लगता है सोच के भी ना। एक जो पेल्विस ऐसा है हमारा कैमरा में, ठीक है, एक ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम पे एक हार्मोन निकलता है, रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन से सब कुछ रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। तो बोन्स ऐसे सेपरेट हो जाता है, इतना Okay. रिलैक्स हो जाता है, जगह बना देता है बच्चा को निकालने के लिए। साउंड सो पेनफुल ना, तो ऐसे जगह बना देता है, ठीक है। तब व्हाट इज शी आस्किंग, आई डोंट नो, She's क्योंकि ये तो asking फील कि नहीं होना हाँ, है। she's asking कि ये तो I think बस she's asking on behalf of her mother or what, after like कितना दिन तक आराम करना चाहिए, like she's asking that like after normal delivery के बाद माँ नॉर्मल को डिलीवरी कितना के बाद दिन प्यूपेरियन पीरियड इज 6 वीक्स। जब तक एक्चुअली जब तक मैटरनिटी लीव ही आपका 6 मंथ्स है, 6 मंथ्स रेस्ट कर लीजिए। आई थिंक शी इज ऑल्सो आस्किंग कि डिलीवरी के बाद क्यों इतना हैवी वाइट डिस्चार्ज होता है स्मेली के साथ। डिलीवरी के बाद स्मेली वाइट डिस्चार्ज तो इतना होना तो नहीं चाहिए। इट डिपेंड, आप जो until and unless I examine, maybe this is a complaint in respect to her problem only. डिलीवरी के बाद वजाइनल ड्राइनेस इज वेरी कॉमन। डिलीवरी के बाद लो डिक्रीज लिबिडो इज कॉमन। डिलीवरी के बाद वुमेन का मेंटल स्टेटस कई बार पोस्टमार्टम डिप्रेशन, बहुत कुछ होता है। बट क्या क्वेश्चन था? ये पूछ रहे हैं कि ये इतना this हैवी वाइट डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज इज जस्ट इन्फेक्शन। जस्ट इन्फेक्शन ना। आप एग्जामिन करवा लीजिएगा। मे भी कुछ घाव है जो सूखा नहीं है जिससे डिस्चार्ज निकल रहा है, तो एग्जामिन करवा लीजिएगा बस। माई सजेशन विल बी गेट योरसेल्व्स इंटरनली एग्जामिन्ड। ओके, बहुत सारा क्वेश्चन है। आई थिंक आई हैव टू पिक नाउ ना, कौन सा पूछेगा। या यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट इज लाइक टीनेज लड़की के लिए लाइक 2 times एक मंथ में अगर 2 बार पीरियड होता है होने से उसको क्या करना चाहिए। दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। कई बार इसके लिए ना मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाना पड़ेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 28 डेज साइकिल, सबको मालूम है। नो, नॉट अ सिंगल वुमेन इज परफेक्ट कि एवरी 28 डेज में मेंस होगा। प्लस माइनस अगर 3 डेज कर दो तो भी नॉर्मल में होगा। तो 28 डेज माइनस 3 इज 25। जनवरी के 1 तारीख में पीरियड हुआ, फिर 25 तारीख को पीरियड हुआ, दैट इज नॉर्मल। ओके, योर बॉडी डजंट नो जनवरी फरवरी मार्च, इट इज अस हु मेड जनवरी फरवरी, ह्यूमन बीइंग्स मेड, है ना। तो वन शुड नो अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिफोर नोइंग कि सच में आपको मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट्स है कि नहीं है। ठीक है, लोग बोलते हैं कि मेरा इतना गड़बड़ आता है, कभी कभी मैं मंथ का शुरू में आता है, कभी का मंथ लास्ट में आता है। अभी देखा जाए तो फरवरी, टुडे इज 29 फरवरी, 29 फरवरी, सोचो मंथ भी तो अलग है ना। अभी हमारे बॉडी को कौन बताएगा कि फरवरी का मंथ कम है, कम है, मार्च में थोड़ा 1 दिन एक्स्ट्रा होगा, ये सब आवर बॉडी डजंट नो। आवर बॉडी जस्ट नो 28 डेज साइकिल। वी फॉलो, जैसे कि वी आर निशीज नो, वी फॉलो ल्यूनर कैलेंडर, आवर बॉडी फॉलोज ल्यूनर कैलेंडर। हमको ल्यूनर कैलेंडर ही बनाना चाहिए था। आई डोंट नो व्हाई 30, 31 ये सब बनाया, इतना कंफ्यूजन क्रिएट किया। वैसे ही हम लोग जब बच्चा का जो डिलीवरी का डेट देते हैं, हम ल्यूनर कैलेंडर को ही फॉलो करते हैं। तो कई बार हम जो मंथ बोलते हैं, पेशेंट लोग नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। बिकॉज वी फॉलो ल्यूनर कैलेंडर, आवर बॉडी फॉलोज ल्यूनर कैलेंडर। ठीक है, आई थिंक हमको भी पता नहीं था कि हम लोग का बॉडी ल्यूनर कैलेंडर फॉलो करता है। मून, दिस इज समथिंग न्यू फॉर मी आल्सो। यहाँ पे क्वेश्चंस आई थिंक आई हैव टू, ये एक लेते हैं लाइक फ्रॉम, ये एक LGBT की तरफ से। Are there any specific health concern or risks associated with lesbian sexual activity? As a gynecologist, what would be your advice for a safer sex between two women? Be it safer sex between two women, be it safer sex between two men. Same sex sexual intimacy is at higher risk of getting infection
than the straight couples. Because, say for example, same sex females, they will use sex toys. Sex toys will obviously cause more injury. That is well understood. And more injury means more infection. Suppose the same sex toys is used on the both partners, एक दूसरे को इन्फेक्शन लग जाएगा. मोर इंजरी, ज़्यादा इन्फेक्शन, तब तो बहुत ही ख़राब है. तो इफ़ एट ऑल इफ़ यू यूजिंग अ सेक्स टॉय, जस्ट यूज सिंगल सेक्स टॉय फॉर अ मतलब एक अपना पर्सनल होना चाहिए. डू नॉट शेयर इट, है ना. इवन इफ यू शेयर इट, यूज बेरियर कॉन्ट्रासेप्शन. I think even with the oral sex, you have this barrier thing for the oral sex as well. तो उसमें भी you'll have to use that. जो आपके जो हम सर्वाइकल कैंसर बार बार बोल रहे हैं, इंजरी ज़्यादा होगा, उसमें ज़्यादा लगेगा, है कि नहीं. तो सर्वाइकल कैंसर ऊपर से एचपीवी वायरस एंड इंजरी, ज़्यादा एंट्री, ज़्यादा सर्वाइकल कैंसर. सेम सेक्स में अगर बच्चा हुआ, द प्रॉब्लम विद रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ वुमेन इज की ज़्यादा बच्चा करो तो सर्वाइकल कैंसर, बच्चा ना करो तो यूट्रस एंडोमेट्रियम कैंसर. अभी सेम सेक्स में है, बच्चा तो होने से भी मे बी दे अडॉप्ट और जो भी है डोनर स्पर्म यूज़ करेगा या जो भी करेगा. लेकिन अगर बच्चा ही नहीं हुआ तो एंडोमेट्रियल कैंसर, और ज़्यादा इन्फेक्शन एचपीवी वायरस और सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, मतलब कैंसर भी कॉमन होता है. एंड दे यूज, जैसे कि फीमेल्स आर मोर इनटू फिंगरिंग, नेल्स आर ऑलवेज गंदा, ठीक है. तो वो सब चीज़ में है. हाइजीन पार्ट को ध्यान पे रखिएगा. इट इज़ ऑलवेज गुड टू wash off immediately after your sexual act. And you should take care of the sex toys. Even men, they have more of anal sex. Anal sex से भी इंजरी ज़्यादा होता है. उसमें भी HIV हो या कुछ भी STDs हो, उससे ज़्यादा फैलता है. तो वही है कि स्ट्रेट कपल्स में इन्फेक्शन ऑब्वियसली होता है, बट सेम सेक्स में और ज़्यादा होता है. तो टेक केयर ऑफ योर हाइजीन, सेक्सुअल हाइजीन. सेक्सुअल हाइजीन. आई थिंक विल हो गया, इतना ही क्वेश्चंस लेते हैं एंड वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. एंड आई थिंक वी हैव कवर अप अ लॉट ऑफ टॉपिक एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिकल टॉपिक जो होता है लेकिन लोग इतना बात नहीं करते हैं. सो आई एम ग्लेड चिरची मैम आप यहाँ आए एंड यू हैव गिवन अस सच ए इंसाइटफुल कन्वर्सेशन. थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन. एंड आई जस्ट वांट यू टू आंसर वन लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ कि अरुणाचल में इफ़ वी टॉक अबाउट कौन सा केसेस और कौन सा प्रॉब्लम लेके ज़्यादातर आपके पास आते हैं पेशेंट्स? मेरे पास तो मैक्सिमम तो वजाइनल डिस्चार्जेस को ही लेकर आते हैं. वजाइनल डिस्चार्ज, मेन प्रॉब्लम विद वजाइनल डिस्चार्ज इसकी औरत को पता नहीं होता है कि नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज कैसे होता है, इन्फेक्शन वाला कैसे होता है, एंड कौन से वाले को हम बस एक हाइजीन मेंटेन करते हुए हम उसको ठीक कर सकता है, कौन से वाले को प्रॉपर मेडिसिन के साथ ही ठीक कर सकते हैं. ठीक है, वो चीज़ के लिए बहुत लंबा टॉपिक, बहुत लंबा डिस्कशन जाएगा अगर सिर्फ वजाइनल डिस्चार्ज के ऊपर आप टॉपिक रखोगे. तो माय एडवाइस विल बी कि प्लीज़ नो दैट 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में एक दिन जब ओव्यूलेशन होता है, उस समय जब आपका डिस्चार्ज होता है, दैट इज़ नॉर्मल, ओव्यूलेशन वाला नॉर्मल. जिसको नहीं होता है उसमें प्रॉब्लम होता है. ओव्यूलेशन ही नहीं होता, PCO पेशेंट के बारे जो हम डिस्कस कर रहे थे, उन सब में थोड़ा प्रॉब्लम होगा. तो एक नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज के बारे में थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए. एंड बाकी जो है कि आपका जो
वजाइना एज वी नो, आगे पेशाब का रास्ता है, पीछे लेटरिन का रास्ता है. तो वजाइना का जब हेल्थ हम बात करते हैं इसके बारे में, वन शुड नो कि साथ में यूरिनरी एंड बाउल हेल्थ को भी हमको मेंटेन करना चाहिए. अभी क्या है कि अभी वी डिस्कस ना, वजाइना एंड एनस फट के एक हो जाता है, इतना आसपास है. पेट बार बार खराब होने से क्या होगा? यू विल गो टू बाथरूम बार बार, आपका मतलब एमीबियासिस हो रखा है, कुछ इन्फेक्शन हो रखा है, आपको सपोज व्हाट यू कॉल ना पेलू हो गया है, ये सब चीज़ आसपास वजाइना के आसपास नहीं जाएगा क्या? तो वजाइना को इन्फेक्शन कर देगा. पेट साफ रहना है, यूरिन भी साफ रहना, पानी ज़्यादा पियो. क्या होता है कि हम ज़्यादा शुगर लेंगे, शुगर एक्स्ट्रा कहाँ से निकलेगा? पेशाब से निकलेगा. शुगर विल अगेन अट्रैक्ट, मीठा चीज़ विल अट्रैक्ट बैक्टीरियाज एंड germs and all. तो वही है कि to have a healthy vaginal health, you should have healthy urinary and bowel habits also. Okay. I उसके think बाद तो vaginal tightening ज़्यादा आता है. I do वीक में एक बार, आई सेड ना, वीक में एक बार, कभी कभी वीक में 2 बार vaginal tightening हो जाता है. एवरी vaginal tightening पेशेंट सोचते हैं कि am I the only one? And they want to, let me tell you one more thing, vaginal tightening जो जैसा आई से ना, आर के मिशन में आई वर्क, इतना साल हो गया है, बहुत सारा केसेस ना मैंने किया है था, ना मेरे कलीग्स लोगों ने किया. करते थे बट ऐसा नहीं कि हफ्ता हफ्ता में कर रहे हैं कि नहीं, बिकॉज अभी दिस इज़ अ टैबू टॉपिक, छुप के करना चाहते हैं. एंड सपोज एडमिट हो गया, 3 दिन रहना पड़ गया हॉस्पिटल में, पीपल इलाज क्या बीमार है, झूठ बोलना पड़ता है, मेरा ऐसे ऐसे गायनी का ऐसे ऐसे प्रॉब्लम था. फिर सिस्टर लोग को मालूम नहीं होता है, सिस्टर का भी डिस्चार्जेस में बता देते कि आपका ऐसे ऐसे हुआ था ना, तो मतलब पता नहीं चलता, क्योंकि दिस इज मतलब मेडिकल प्रोफेशन के लिए, हमारे लिए तो ये नॉर्मल चीज़ है ना. तो बहुत लोग हॉस्पिटल जाते नहीं, दे लुक फॉर प्राइवेट. फिर प्राइवेट में भी 3 दिन क्या बहाना मार के एडमिट होगा, शर्म भी लगता है. तो आज के ज़माने में क्या होता है कि ना, इन बिग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ यूट्रस रिमूवल सर्जरीज भी सुबह या शाम को डिस्चार्ज कर देते हैं. तो लाइक बस इन आवर क्लिनिक हम सुबह बुलाते हैं, वजाइनल टाइटनिंग सर्जरी करते हैं, दिन भर रेस्ट करने देते हैं, शाम को हम छुट्टी कर देते हैं. तो ये जो चीज़ है डे केयर, ओपीडी बेस्ड टाइप वजाइनल टाइटनिंग सर्जरी, उसके वजह से शायद आई हैव यू नो आई एम गेटिंग मेनी केसेस. छुप के करना चाहते हैं. सो फॉर दैट टाइम आएगा जब पीपल विल बी मोर ओपन अबाउट इट. व्हेन वी वर किड्स, फेस में थ्रेडिंग करने से भी वो बदमाश लड़की है, ऐसे थ्रेडिंग करता है, ऐसा होता था बचपन में. तो ना स्कूल में कोई थ्रेडिंग करने से वो बदमाश लड़की है, काजल लगाया है, ऐसा. तो अभी पीपल आर चेंजिंग. अभी हस्बैंड लोग खुद ही अपना वाइफ को पार्लर लेके जाता है. टाइम विल कम व्हेन हस्बैंड विल से कि चलो डोंट वरी, आई एम देयर, आई विल बी योर यू नो, साथ में आई विल हेल्प यू. क्योंकि अभी ना वाइफ पति को भी नहीं बताते. वाइफ पति से भी छुपना चाहते. दे जस्ट वांट टू गिव देम सरप्राइज. आई थिंक सरप्राइज वाला पार्ट तो अच्छा ही है. सरप्राइज वाला पार्ट अच्छा है, बट शर्म करता है कि व्हाई आर यू डूइंग. हस्बैंड विल से व्हाई आर यू डूइंग, पीपल विल मेक फन ऑफ मी, कि मे बी बिकॉज आई एम यू नो आस्किंग फॉर इट, दैट्स व्हाई यू आर डूइंग इट. ऐसा भी मतलब होता है. तो सरप्राइज वाला पार्ट भी अच्छा है. एंड इन यू नो बिग सिटीज, मे बी आई एम ज़्यादा देर बोल रहे, जो हाई प्रोफाइल मैरिजेस, नो हाई प्रोफाइल सोसाइटी में आई डिड ट्रेनिंग इन दिल्ली एज वेल एज इन मुंबई. तो मुंबई में थोड़ा और ज़्यादा ऐसे पॉश हाई प्रोफाइल वाला आई केम अक्रॉस. दे यूज्ड टू डू हाइमेनोप्लास्टी, 25 years है ना, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, हाइमेनोप्लास्टी सर्जरी गिफ्ट देते हैं हस्बैंड को. इट विल बी लाइक फर्स्ट नाइट वाइफ इज ब्लीडिंग, तो दैट्स अ गिफ्ट, सिल्वर जुबली गिफ्ट. ऐसा आई डोंट नो, हमारे यहाँ ज़रूरत नहीं है. हमारे यहाँ ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमारे यहाँ क्या होता है कि पीपल आर सेक्सुअली एक्टिव बहुत पहले. तो वर्जिन होना इज़ नॉट एसेंशियल इन आवर सोसाइटी एज ऑफ नो, व्हाट आई हैव सीन. क्योंकि बहुत जल्दी स्कूल
जैसे ही एडल्ट क्रॉस करते हैं बाय दैट टाइम सब दे आर ऑलरेडी सेक्सुअली एक्टिव. ओके आई थिंक हम लोग का ट्रैवल का वो भी है ना, लाइक वी आर लाइक नॉट More open. वर्बली एक्सप्रेसिव, लेकिन फिजिकली हम बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं. हाँ. मे बी बिकॉज ऑफ दैट हम लोग का थोड़ा सेक्सुअल लाइफ थोड़ा ठीक हो रहा होगा सबका. मैरिज का लाइक इमोशनल कन्वर्सेशन नहीं होता होगा सेक्सुअल वो को लेके, लेकिन आई थिंक इंटीमेसी में तो आई गेस ट्राइबल थोड़ा वो खून गरम है ना सबका. स्ट्रेट फॉरवर्ड. एंड आई होप एक दिन ऐसा भी आएगा कि सब लोग यस आई एम गोइंग फॉर वेजिनल टाइटनिंग. सो पीपल आर चेंजिंग. बहुत चेंजेस देखा है. 10 years हो गया है. बहुत चेंजेस देखा है. आई एम एक्सपेक्टिंग मेनी मोर चेंजेस. पहले हमको बताना पड़ता था कि पेप स्मीयर करना पड़ता है. अभी दे कम देमसेल्स, हमको पेप स्मीयर करना है, ये करना है. मेरे पास कुछ बीमार है कि नहीं है, बस थोड़ा सा देख दो, रूटीन गायनी चेकअप कर दो. पहले अभी इफ़ आई आस्क माय मम्मी ना, चलो मम्मी आई एग्जामिन, तो दे विल से कि क्यों बीमार नहीं है, क्यों करना है एग्जामिन. तो आर मदर का जनरेशन में एक्सपोजिंग वाज अ वेरी बिग थिंग. हमारे समय में थोड़ा ठीक हो गया है. इन फ्यूचर और अच्छा होगा. आई होप, क्योंकि ये पॉडकास्ट इज ऑल्सो ए वे फॉरवर्ड कि कुछ ये सब टॉपिक के बारे में विल डिस्कस एंड विल टॉक. सो आई थिंक वी प्रीटी मच डन दैट आज के एपिसोड में. Thank you आई so होप much. all the ladies and also all the gentlemen will love this episode. And अगर आप देख रहे हैं आपको अच्छा लगा है, so I really wish and urge you to share it with your better half, क्योंकि I think ये discussion होना चाहिए. Yeah. And thank you Chichiman once again for coming Thank to you so Small much Talk for with having me Coco. here. So we have a token of appreciation for you. This hamper is from Moody Monk, and I am really blessed and really grateful to you कि आप यहाँ आए. And seriously, I never thought कि हम लोग का episode is going to be this insightful and unfiltered, and that's you, ma'am. आई थिंक इनिशियली हम भी थोड़ा ऐसा हो रहा था कि कैसा शुरू करेगा करके, बट यू गेव दैट वाइब एंड यू आर सो ओपन. Yeah. I'm very open. Thank you for doing that. Discuss your sexual life with me. And I hope to see more future episode आपके साथ. ओहो. So and तब हम लोग और डीपली जाएंगे. हाँ, एक सिंगल टॉपिक अगर करोगे ना उसमें और अच्छा होगा. रैंडम टॉपिक्स में ना लाइक आई थॉट कि ये जो थोड़ा एक इंट्रोडक्शन वाला एक एपिसोड होगा. सो इन फ्यूचर वी माइट डू लाइक सेक्शन वाइज. तो आई होप catch other gynacs also. People are tired of seeing me again and again. no, it's because like you're very passionate about what you do, and Yeah. it shows. इसका भी reason. I think you should also take some credit for that. Thank you. So this is a hamper for. Thank you Coco. Thank you Moody Monk. और कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? how what do you think? कैसे गया? Yeah, as per expectation only. I was expecting great things only. तो Okay. काफ़ी अच्छा लगा. Okay, तो I'll do the sign off अभी. हाँ, ठीक है. Okay, this was it for today's episode. If you liked the episode, keep watching Small Talk. We are available on Spotify, YouTube and Facebook. हर जगह जाके follow कर दो. And for such content, such video, keep watching Small Talk. Bye-bye. In a small talk with Coco.